Hello everyone. Now we are going to discuss a very important chemical reaction of aldehyde and ketone, and that is oxidation of aldehydes and ketones. So in alcohol, phenols and ethers chapters, you have seen the chemical properties of alcohol and phenol, and you have seen that aldehydes and these ketones, they can be oxidized to the respective carboxylic acids. Aldehydes, how you have seen there you were actually studying the oxidation of alcohol, right? So when alcohols, they get oxidized, 1-degree alcohols, they get converted into aldehydes under mild condition, but under strong conditions the alcohols, they don't stop at aldehyde, they directly get converted into carboxylic acid. One route was conversion of aldehyde to carboxylic acid also. So I have given the detailed picture of this conversion in the chapter alcohol, phenols and ethers under the heading chemical properties of alcohols. What I said, 1-degree alcohol from mild oxidizing agent. There I have given a complete list of mild oxidizing agents and strong oxidizing agents. So mild oxidizing agent 1-degree alcohol से aldehyde बनाते हैं, और अगर आप माइल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग डाल दें तो अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. फिलहाल हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला रूट डिस्कस कर रहे हैं कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड आप कैसे बना सकते हैं. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, एक ही स्टेप में आपका काम हो जाएगा. एल्डिहाइड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इफेक्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. कीटोन्स भी ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन वो बहुत विगरस कंडीशन में जो है ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए रहता है कीटोन्स के कन्वर्जन के लिए. As we are discussing this heading under the chapter aldehyde, ketones and carboxylic acids, तो यहाँ इन chemical reactions के अलावा कुछ बहुत ही ज्यादा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दिए हुए हैं. हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये माइल्ड और स्ट्रॉन्ग वैसे तो दोनों ही पढ़ चुके हैं, पर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ेंगे जिनका पर्पस कुछ और है. इनका पर्पस कोई इंटर कन्वर्जन नहीं है. इस चैप्टर में, कौन सा चैप्टर में, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो आपको नए और पहली बार माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाए जा रहे हैं वो है टॉलेंस एंड फेहलिंग रिएजेंट. तो इनका पर्पस दूसरा है. इनका पर्पस नोट करें, इनका पर्पस है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन. आप लैब में अपने करिकुलम का एक पार्ट है 12th क्लास में कि एल्डिहाइड और कीटोन को आपको एज अ फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करना है लैब में. तो ये टेस्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आप लैब में भी करेंगे, और इस पर जो है एनसीईआरटी के बैक साइड पे क्वेश्चन दिया हुआ है 12.13 क्वेश्चन आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में. मैं उसे सॉल्व करूंगी. एक्चुअली पर्पस ऑफ स्टडिंग this topic here is to solve this question 12.13 from NCERT, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में हर साल डेफिनेटली आता है. that how will you distinguish the given pair of organic compounds. So I'll discuss the question which is given in NCERT and I will guide you how to write the answer. Now see, first of all I will discuss the 3 tests are given in NCERT. I will discuss them in very short because we need not to learn any theory here. We need not to learn any reaction over here. सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं लर्न करनी है, क्योंकि बोर्ड में जैसा क्वेश्चन आता है इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उसको आंसर कैसे करना है. सो टॉलेंस टेस्ट क्या कहता है? टॉलेंस टेस्ट ये कहता है कि व्हेन यू वार्म एन एल्डिहाइड, ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड with freshly prepared Tollens reagent. What is Tollens reagent? Tollens reagent is ammonical silver nitrate solution. So I am writing ammonical AgNO3. So this is Tollens reagent. So you can be asked in Viva also what is Tollens reagent if you are given aldehyde for testing. So Tollens reagent is ammonical silver nitrate solution. So when you warm aldehyde with ammonical silver nitrate solution, that is Tollens reagent, what happens? A bright silver mirror is produced due to the deposition of silver metal. If you refer the NCERT, this reaction is given as this. This is the aldehyde which you are treating.
and this is the formula for the your Tollens reagent. So when this reaction takes place, due to the deposition of Ag, right, I should write 2Ag here, one more product is formed, rather two more, 2H2O plus 4NH3. So these are the product of this reaction, but due to the deposition of these Ag, that is silver, on the walls of test tube, this gives you the silvery appearance and this is called as silver mirror. तो आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए, बट नोवेयर फॉर द पर्पस ऑफ बोर्ड एग्जाम दिस इज नेसेसरी, क्योंकि आपको रिएक्शन लिखना जरूरी नहीं होता, आपको ऑब्जर्वेशन और टेस्ट का नाम पता होना चाहिए. अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको इस चीज के लिए भी गाइड करूंगी. फर्स्ट लेट अस डिस्कस द टेस्ट इन शॉर्ट. नेक्स्ट एंड द सेकेंड इज फेहलिंग्स टेस्ट. दिस इज ऑल्सो फॉर द एल्डिहाइड्स. टॉलेंस टेस्ट भी एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, मतलब इस रिएक्शन में कीटोन्स रिएक्ट नहीं करेंगे. दिस टेस्ट इज सोलिली फॉर एल्डिहाइड्स. सिमिलरली फेहलिंग्स टेस्ट भी सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए है, कीटोन्स उसमें कोई टेस्ट नहीं देते. फेहलिंग टेस्ट के लिए दो सोल्यूशंस आते हैं. वन इज कॉल्ड एज फेहलिंग सोल्यूशन ए एंड द अदर इज कॉल्ड एज फेहलिंग्स सोल्यूशन बी. ओके, सो फेहलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है? फेहलिंग सोल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है. और फेहलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है? दैट इज एक्चुअली अल्कालाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. व्हाट इज दिस? दैट इज अल्कालाइन सोडियम, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट बिकॉज लेस स्पेस इज देयर, पोटेशियम टार्ट्रेट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोशले सॉल्ट. For the theory purpose, these tests, these reactions are not needed. But if you'll have to solve question number 12.13 without these tests, the question cannot be solved. So I'm giving you an insight into the test and then we will discuss further. So actually ये दोनों solutions को आप mix कर देते हैं equal amount में. जब हमें test करना हो उससे पहले इन दोनों को ले लें टेस्ट ट्यूब में बराबर क्वांटिटी में, फिर इन्हें हीट कर लें एल्डिहाइड डालकर, ठीक है. तो आपको क्या मिलेगा कि रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेगा, और वो रेडिश ब्राउन पीपीटी ये बताता है कि यहाँ पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है. सो द रिएक्शन इज RCHO देन 2Cu2 plus 5OH minus, and this gives you RCOO minus plus Cu2O plus 3H2O. So this is the actually reaction of the Fehling's test. And due to the formation of this compound, you will see the red brown PPT. But nowhere these reactions are important as per the theory exams are concerned. For the practicals, they are very much needed. All these informations, what is Fehling solution A, what is Fehling solutions B. So when you'll prepare for the theory, it will be beneficial two ways, that simultaneously your practical part is also getting covered. Now see, the third test of the syllabus is actually in NCERT, it is written as a haloform reaction, but write it as iodoform test. iodoform test लिख लें इसके लिए. जो तीसरा ऑक्सीडेशन के अंदर टेस्ट दिया हुआ है NCERT में, उसको आप डायरेक्ट iodoform टेस्ट लिखें. और इसमें नोट करें कि iodoform टेस्ट जो है is given by both aldehydes and ketones. एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ये टेस्ट देते हैं, ठीक है. जबकि फेहलिंग और टॉलेंस टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, ठीक है. आइडोफॉर्म टेस्ट को दोनों देते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, बट देयर इज अ कंडीशन. द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स शुड हैव एटलीस्ट कम से कम एक CH3 होना चाहिए फ्री. दे शुड हैव एटलीस्ट 1 CH3 फ्री. एक CH3 फ्री होगा, जिन भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे, ठीक है. अब ये और क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसके रिएक्शन लिख लेते हैं CH3, देन इफ सपोजिंगली इट इज रिएक्टिंग विद NaOX लिखा है बुक में, यू राइट NaOI बिकॉज आई एम कॉलिंग इट एज आइडोफॉर्म.
एक्चुअली हेलोफॉर्म टेस्ट कहलाता है ये, मगर हम हेलोजन की जगह आयोडीन यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसे आयोडोफॉर्म कह दिया है और आप भी इसे आयोडोफॉर्म बोलकर ही पढ़ें. सो दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट योर स्टार्टिंग कंपाउंड इनटू दिस, and all together what you will get, this CH3 part from here will go with this halogen part of the compound. So in this molecule you are going to get here what? Not CH3, you will get CHI3. This is the compound which you are going to get. So not necessarily the reaction is supposed to be balanced, but the product is CHI3, and which is actually due to the formation of the CHI3, the reaction shows yellow PPT. Supposingly if I don't write NaOI, and according to NCERT if I write NaOX, then you should know this X can be chlorine, bromine or iodine. So I have taken iodine here from these three and I called this reaction as iodoform test. So you have to remember what I am writing here. I have taught you 3 tests. First was Tollens test. It is for aldehydes. Aldehydes they give test, ketones they don't give. ठीक है. Then Tollens test में observation क्या था? Silver mirror. इतना अगर आपको याद रहता है तो this much is sufficient. सेकेंड टेस्ट था फेहलिंग्स टेस्ट. थ्योरी के लिए आई एम सेइंग, थ्योरी के लिए जितना मैं लिख रही हूं उतना ही याद रखना है. फेहलिंग टेस्ट इज अगेन गिवन बाय एल्डिहाइड, नॉट बाय कीटोन. कीटोन्स देते हैं? मैंने कहा नहीं देते हैं. ऑब्जर्वेशन क्या था फेहलिंग टेस्ट में? ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन भी लिख सकते हैं. So you can write reddish brown as NCERT says it's reddish brown. So you write reddish brown. Then the third test which I taught you is iodoform test. iodoform test में एक कंडीशन बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं. ठीक है, ऊपर वाले दोनों टेस्ट एल्डिहाइड देते थे, कीटोन नहीं देते थे. पर iodoform टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, दोनों देते हैं. पर कौन से वाले देते हैं? विच हैव एटलीस्ट 1 CH3 फ्री, जिनके पास कम से कम एक CH3 हो. ऑब्जर्वेशन क्या था? येलो पीपीटी. तो ये समरी हो गई इन तीनों टेस्ट की. आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ही याद करना है. इतना डेटा आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, एंड देन आई विल टेक यू टू द क्वेश्चन नंबर 12.13 फ्रॉम NCERT, एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व 7 क्वेश्चंस ओनली इन 3 लाइन्स. Now if you can see, this is the question according to NCERT में क्वेश्चन नंबर 12.13 है लास्ट में, and it is saying give simple chemical test to distinguish between following pairs of compounds. और उसमें ये 7 क्वेश्चंस दिए हैं. इन 7 क्वेश्चंस को हम सिर्फ 3 लाइन में सॉल्व करेंगे. मतलब हमारे पास सिर्फ 3 आंसर हैं और इन 7 सवालों के जवाब में वो 3 ही आंसर आपके लिए काम करेंगे. सो सबसे पहले क्या करें, इन 7 को हम 3 कैटेगरीज में बांटेंगे. वो 3 कैटेगरीज क्या हैं पहले देखें. इन 7 में से हम वो क्वेश्चंस छांट कर अलग करेंगे जिनमें पेयर है एक एल्डिहाइड और एक कीटोन दिया है. उनको हम एक साथ यहां लिखेंगे. सेकेंड कैटेगरी होगी 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन एक साथ दिए हैं, उन्हें यहां सॉल्व करेंगे. और तीसरी कैटेगरी है मिसलेनियस की, जिसमें ना तो एल्डिहाइड है ना कीटोन है. ठीक है, उसे यहां सॉल्व करेंगे. नाउ यू सी, गेट बैक टू द फर्स्ट टाइप. फर्स्ट टाइप में क्या समरी लिखना है? जिनमें एक एल्डिहाइड एक कीटोन है. अब देखें, पहला क्वेश्चन है प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, यानी ये एक एल्डिहाइड है, ये एक कीटोन है. तो ये एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन फर्स्ट कैटेगरी का है. लिख लेते हैं. फर्स्ट वाला है प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन. यहाँ क्या लिखना है? एक एल्डिहाइड एक कीटोन. जिस टेस्ट में एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को डिफरेंस करने के लिए बोला उसको पहली हेडिंग के अंदर लिखें. दूसरा देखिए क्या है, एसिटोफिनॉन बेंजोफिनॉन. ये क्या था? एक एल्डिहाइड एक कीटोन. ये क्या है? दोनों में ONE आ रहा है.
दोनों ही कीटोन हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, जिनमें दोनों एल्डिहाइड दोनों कीटोन है उनको यहां ले आए। तो आपका दूसरा क्वेश्चन था एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन, इसको यहां लिख दिया क्योंकि ये कैटेगरी है, दोनों कीटोन एक साथ हैं इसलिए एक यहां लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन है फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, ना तो एल्डिहाइड है ना कीटोन है, मतलब मिसलेनियस है। ठीक है, मैंने जो कैटेगरी डिवाइड की है उसके हिसाब से ना तो ये एल्डिहाइड है ना ही क्या है कीटोन, तो उसको अलग लिखते हैं, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड अलग लिख दिया, थर्ड कैटेगरी में डाल दिया। नाउ यू सी फोर्थ क्वेश्चन क्या था, फोर्थ क्वेश्चन है बेंजोइक एसिड एथाइल बेंजोइड, यहाँ भी वही मिसलेनियस कंडीशन है, नो एल्डिहाइड नो कीटोन, इसे भी यहीं ले आए। फोर्थ क्वेश्चन आपका है बेंजोइक एसिड एंड एथाइल बेंजोइड एंड एथाइल बेंजोइड। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखें, पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन, फिर से दो कीटोन एक साथ हैं, दो कीटोन एक साथ वाला कैटेगरी है। क्वेश्चन नंबर है 5, व्हाट इज द क्वेश्चन, पेंटेन 2 ओन एंड ये पेयर में होते हैं हमेशा क्योंकि आपको डिफरेंस बताना होता है, 3 ओन, तो दो एल्डिहाइड दो कीटोन वाले यहाँ लिखना है, अभी ये दोनों ही दो दो कीटोन वाले हैं। ठीक, अब आप देखिए आपने 5 को लिख लिया अलग अलग। सिक्स्थ क्वेश्चन है बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनॉन, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, एल्डिहाइड और एक कीटोन, तो यानी ये यहां आ जाएगा, एक एल्डिहाइड एक कीटोन वाले यहां लिखे हैं, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। और लास्ट क्वेश्चन देखे हैं इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, मतलब दोनों एल्डिहाइड हैं, तो मैंने क्या कहा था, दो एल्डिहाइड दो कीटोन वालों को यहां लिखेंगे, तो इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल को मैंने यहां लिख दिया। नाउ आई थिंक आपको क्लियर है कि एनसीईआरटी ने आपको ये 7 क्वेश्चंस दिए थे जिनमें 7 पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स थे, इनको आपने 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। 7 में से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आगे वाला एल्डिहाइड है पीछे वाला कीटोन है, पलट के भी दे दे तो भी एक कीटोन एक एल्डिहाइड ही रहेगा। ये क्लियर हो गया। 7 में से ये 3 एसिटोफिनॉन बेंजोफिनॉन पेंटेन 2 ओन एंड 3 ओन, ये शुरू के दोनों एल्डिहाइड हैं, और ये वाले क्वेश्चन में इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल दोनों, सॉरी इनमें दोनों कीटोन और कीटोन है, और इन लास्ट वाले में दोनों एल्डिहाइड है। माने ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनमें पेयर या तो एल्डिहाइड का है या कीटोन का है। और लास्ट आपने जो कैटेगराइज किया है उसमें ऐसी चीजें रखी हैं जिनमें एल्डिहाइड कीटोन नहीं था, कुछ अलग ही चीज थी। अब देखिए इनको आप सिर्फ 3 आंसर है, 3 कैटेगरीज बनाइए ना, सिर्फ 3 आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन, तो आपसे क्या दिया है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन डिस्टिंग्विश करने को दिया है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन दिया है, तो मैंने आपको 3 टेस्ट बताए हैं, उनमें से जो शुरू के 2 टेस्ट थे वो एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन नहीं देते हैं, तो यहाँ पे आप टॉलरेंस टेस्ट लिख सकते हैं, एल्डिहाइड देगा कीटोन नहीं देगा, हो गया काम खत्म। लेकिन यह एक कंडीशन है, मैं आपको फिर से पीछे ले चलती हूँ, वहां पे नोट करें। फेहलिंग टेस्ट में मैंने कहा था एल्डिहाइड देते हैं पर कीटोन नहीं देते, यहाँ पे ऐड कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ जिससे आप भूले ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड भी ये टेस्ट नहीं देगा, यानी इस टेस्ट में एक कंडीशन लग गई, इस टेस्ट में क्या लग गई, एक कंडीशन लग गई, तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या है, हमें सिर्फ ऐसे आंसर्स प्रिपेयर करने एग्जाम में कि हमें कॉपी खोले और 2 बार पढ़ें और हम एग्जाम के लिए रेडी हों। तो अब क्योंकि बेंजल्डिहाइड सवाल में दिया है, हमारे फर्स्ट जो हमने समराइज किए क्वेश्चंस उसका फर्स्ट सीक्वेंस का सेकंड क्वेश्चन में बेंजल्डिहाइड है, इसलिए मैं ये टेस्ट यूज नहीं करूंगी जिससे हम कहीं कोई गलती ना करें। पर आप याद रखें कि फेलिंग टेस्ट को बेंजल्डिहाइड नहीं देता क्योंकि वो एरोमेटिक है और यहाँ एक कंडीशन है। तो अब मैं पूरे के पूरे 7 क्वेश्चन सिर्फ इन 2 से सॉल्व करूंगी, सेकेंड और थर्ड से। नाउ सी आई टोल्ड कि मैं 7 क्वेश्चंस को आपके 2 टेस्ट से सॉल्व करूंगी, बट 2 नहीं होंगे, यहाँ 3 होंगे, 2 से शुरू के 5 सॉल्व हो जाएंगे।
आपको दिया है प्रोपेनल प्रोपेनॉन, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, टॉलेंस भी लग जाएगा, फेलिंग्स भी लग जाएगा, लेकिन यहाँ आ गया बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड पे फेलिंग नहीं लगता, मैंने अभी बताया कि एरोमेटिक कम जो एल्डिहाइड्स हैं वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते। तो एक के लिए अलग टेस्ट याद करें, दूसरे के लिए अलग करें। इसका एक सोल्यूशन है कि आप जो है इसके लिए एक टेस्ट याद कर लें कि अगर आपको एक एल्डिहाइड एक कीटोन दिया है तो आपका जवाब हमेशा टॉलेंस टेस्ट होगा। आपको कभी भी एल्डिहाइड कीटोन बोला है, आप बिल्कुल आंख बंद करके टॉलेंस टेस्ट लिखिए। सारे एल्डिहाइड्स देते हैं, कोई सा कीटोन नहीं देता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके दोनों क्वेश्चन में अगर मैं इन्हें ए मान लूं, ठीक है, तो ए को जब मैं टॉलेंस रिएजेंट से मिक्स करूंगी तो मुझे सिल्वर मिरर दे देगा, क्योंकि एल्डिहाइड्स टॉलेंस टेस्ट में सिल्वर मिरर देते हैं। और क्योंकि बी कीटोन है, ठीक है, बी जो है वो कीटोन है, तो बी में जब टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो आंसर आएगा नो ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों क्वेश्चंस का आंसर खत्म। अगर आपको पहला पेयर दिखा है कि देखिए प्रोपेनल और प्रोपेनोन में क्या डिफरेंस कैसे करेंगे, तो आप ए की जगह लिख दीजिए प्रोपेनल में टॉलेंस रिएजेंट डाला, सिल्वर मिरर मिलेगा, मतलब ये एल्डिहाइड है इसलिए टॉलेंस टेस्ट दे रहा है। बच्चे लिखते हैं प्रोपेनल गिव्स टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं लिखना है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव इज नॉट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है सिल्वर मिरर। तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं आधा नंबर ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए और आधा नंबर टेस्ट का नाम लिखने के लिए, और कुछ भी नहीं मिलता अगर आपने ये नहीं बताया कि दो दिए हैं, दो में से कौन टॉलेंस टेस्ट देगा। मान ले आपने लिख दिया कि वन विल गिव टॉलेंस टेस्ट, द अदर विल नॉट गिव, तो विच वन विल गिव हैज टू बी स्पेसिफाइड। तो तीन बातें याद रखनी है कि आपको जो पेयर दिया गया है उसमें से आपको मेंशन करना पड़ेगा कि प्रोपेनल विथ टॉलेंस रिएजेंट गिव सिल्वर मिरर, सिर्फ ये एक लाइन, कंप्लीट आंसर। और बी यानी पहले केस में प्रोपेनॉन विथ टॉलेंस रिएजेंट यू विल नॉट गेट द ऑब्जर्वेशन, तो आप यहाँ नो ऑब्जर्वेशन या नो टेस्ट भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर कंप्लीट है। अगर यही आप बेंजल्डिहाइड के लिए लिख रहे होते तो लिखते बेंजल्डिहाइड प्लस टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर, एसिटोफिनॉन बी की जगह टॉलेंस रिएजेंट नो ऑब्जर्वेशन, मतलब एक टेस्ट है, दो आंसर हो चुके हैं, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना है। तो एक आंसर एंड टू एक टेस्ट एंड टू आंसर्स आर डन। सो सिर्फ टॉलेंस रिएजेंट याद करें, फेलिंग्स ना याद करें। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन नंबर 12.13 प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ 3 टेस्ट बताऊंगी, वो ही याद करें और जैसे बता रही हूँ वैसे ही लिखें। बोर्ड में कहाँ नंबर कटते हैं, आपने सिल्वर मिरर नहीं लिखा, पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया, आपको 0 मिल जाएगा इस पार्ट में। ऑब्जर्वेशन का आधा नंबर होता है और टेस्ट का नाम लिखने के लिए आधा नंबर होता है, और कुछ भी नहीं मिलता अगर आप नहीं लिखते कि प्रोपेनल में ये टॉलेंस सिल्वर दे रहा है और प्रोपेनॉन नहीं देता, तो आपको इनके नाम भी लिखना जरूरी है। कई बार बच्चे सिर्फ लिख देते हैं प्रोपेनल विल गिव सिल्वर मिरर विथ टॉलेंस रिएजेंट, और वो भूल जाते हैं लिखना कि प्रोपेनॉन विल नॉट गिव। तो आपको 2 लोग बोले गए हैं, दोनों का बिहेवियर बताना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो मार्क्स सिर्फ एक है पर कंडीशन बहुत सारी है, टेस्ट का नाम और ऑब्जर्वेशन, इनके बिना कोई नंबर नहीं मिलते। अगर टेस्ट लिखा ऑब्जर्वेशन नहीं लिखा तो सिर्फ आधा नंबर मिलेगा। ऑब्जर्वेशन लिखा है, टेस्ट लिखना भूल गए, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बता ही नहीं रहे हो किस टेस्ट में सिल्वर मिरर आता है। तो 3 बातें याद रखें, 1 2 3, कौन दे रहा है, कौन सा टेस्ट दे रहा है और क्या ऑब्जर्वेशन देगा। ठीक है, कौन है, कौन सा टेस्ट है, नहीं दे रहा है, 6 बातें। एक सवाल के जवाब में 6 बातें कंपलसरी हैं फॉर गेटिंग 1 मार्क। सो दिस इज हाउ, ये सबसे कम शब्द यूज करके आप फुल 1 मार्क ले सकते हो। टेस्ट का नाम और ऑब्जर्वेशन कंपलसरी है, और ये बताना भी कंपलसरी है कि दोनों में से कौन देगा और कौन नहीं देगा। तो इन 2 आंसर्स, इन 2 क्वेश्चंस के लिए सिर्फ एक आंसर, सिर्फ ए की जगह प्रोपेनल बेंजल्डिहाइड लिख लीजिए और बी की जगह प्रोपेनॉन और एसिटोफिनॉन लिख लीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स विद द सेकंड पेयर ऑफ द कंपाउंड, यहाँ दिए हैं 2 एल्डिहाइड 2 कीटोन। ठीक, अब याद रखें जब आपको 2 एल्डिहाइड 2 कीटोन दिए होंगे तो एनसीईआरटी ने एक बहुत ब्यूटीफुल काम किया है कि आप इन सब पे सिर्फ एक टेस्ट लगा पाओगे, और वो है आइडोफॉर्म। क्योंकि सिर्फ एक आइडोफॉर्म ऐसा टेस्ट है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं विद अ कंडीशन कि एक CH3 होना चाहिए। तो एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर देख लें, एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर होता है C6, मतलब फॉर्मूला आई शुड से C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और बेंजोफिनॉन का क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O
इट शुड बी C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। तो बेंजोफिनॉन में एक भी CH3 है क्या? नहीं है, यानी आइडोफॉर्म नहीं देगा। एसिटोफिनॉन आइडोफॉर्म देता है। यहीं से समझ में आ रहा, दोनों को आइडोफॉर्म में डाल सकते हैं, दोनों कीटोन है, पर दो कीटोन दो एल्डिहाइड है, बिल्कुल आंख बंद करके रट लो कि आइडोफॉर्म ही लगेगा। ठीक है, और क्या बेस बनाओगे? CH3 की प्रेजेंस और एब्सेंस। ठीक है, इसमें CH3 है, दे देगा आइडोफॉर्म में येलो पीपीटी, इसमें नहीं है, दोनों C6H5 है, नहीं देगा। पेंटेन 2-1 और 3-1 का स्ट्रक्चर लिख के देख लीजिए। पेंट का मतलब है, मैं यही लिखती हूं, 5 कार्बन। ठीक है, 2-1 मतलब सेकेंड कंडीशन, सेकेंड प्लेस पे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यानी ये वाला एक CH3 आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर आप लिखोगे तो आपको जो है थर्ड पोजीशन पे, देखिए बना ही देती हूं मैं, ये आपको दोनों तरफ इथाइल ग्रुप मिल रहा, कहीं फ्री CH3 नहीं मिल रहा। मतलब फिर से वही है, पीछे वाला आइडोफॉर्म नहीं दे रहा, आगे वाला दे रहा है। ठीक है, इथेनल प्रोपेनल लिखें तो इथेनल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO, और प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5CHO। तो ये हो गया इथाइल ग्रुप, ये फिर से नहीं देगा आइडोफॉर्म और ये देगा। तो आपके तीनों पेयर में आगे वाला आइडोफॉर्म दे रहा है और पीछे वाला नहीं दे रहा, ऐसे भी बाय डिफॉल्ट याद कर सकते हैं। बट ऐसा ना रटे, क्योंकि अगर सीक्वेंस आगे पीछे कर दी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि जिन एल्डिहाइड और कीटोन में CH3 फ्री होगा वो आइडोफॉर्म देंगे। तो मैं इन सबको, आगे वालों को A मान देती हूँ और पीछे वालों को B मान लेती हूँ, क्योंकि मैं एक ही आंसर लिखूंगी, तीनों पे एप्लीकेबल होगा। आप एक ही जगह नाम लिख लीजिए जो भी टेस्ट, जिस पेयर का भी टेस्ट कर रहे हैं, और B की जगह नाम लिख लीजिए जो भी पेयर कर रहे हैं। तो A इन आइडोफॉर्म टेस्ट will give you yellow PPT due to formation of CHI3। CHI3 का येलो PPT बनता है, तो अगर CH3 नहीं होगा तो वो नहीं बनेगा। और जो B है वो आइडोफॉर्म टेस्ट में will not give any observation। अगेन 3 टेस्ट 1 आंसर। सो अगर आपको 2 एल्डिहाइड 2 कीटोन दिए हैं तो बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के आप आइडोफॉर्म टेस्ट लिखें, हमेशा सही होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि क्या लिखना है क्या नहीं। जहां 2 एल्डिहाइड 2 कीटोन दिख गए, हमेशा आइडोफॉर्म टेस्ट लिख दीजिए। अब आप अपनी कॉपी में इन 3 के लिए तीनों अलग अलग लिख लीजिएगा। हेडिंग डालिए एसिटोफिनॉन बेंजोफिनॉन, A की जगह लिख दीजिए एसिटोफिनॉन, B की जगह लिख लीजिए बेंजोफिनॉन। सिर्फ 2 लाइन में इसका आंसर, 2 लाइन में इसका और 2 लाइन में इसका, दैट्स ऑल। 3 क्वेश्चंस 1 सोल्यूशन। ठीक है, सो 5 क्वेश्चन 2 टेस्ट में सॉल्व कर लिए हैं हमने। अब यहाँ ना तो एल्डिहाइड है और ना ही कीटोन है, ठीक, पर एक चीज है जो दोनों में कॉमन है, वो है बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड को यूज करके मैं आपको एक टेस्ट बताऊंगी जो दोनों में लग जाएगा। बेंजोइक एसिड विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2। ये टेस्ट हो गया। ठीक है, तो दोनों में बेंजोइक एसिड है, दोनों में ये रिएक्शन लग जाएगी। ठीक, और दूसरा क्या है? फिनॉल है पहले वाले में और दूसरे वाले में है इथाइल बेंजोएट। ये दोनों ही NaOH CO3 के साथ नो रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों पेयर में क्या कॉमन था वो ढूंढ लिया मैंने, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है NaCO3 के साथ, ना तो फिनॉल देता ना इथाइल बेंजोएट। अब आप अगर बुक्स रेफर करोगे तो फिनॉल के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। फिनॉल के लिए ब्रोमीन वाटर के साथ वो जो है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट PPT देता है, बेंजोइक एसिड नहीं देता। ठीक है, लेकिन अगर आप ये टेस्ट लिखते हो तो नीचे वाले के लिए आपको दूसरा टेस्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले में तो फिनॉल है नहीं। और अगर आप फिनॉल के लिए FeCl3 में वायलेट कलर लिखते हो, बेंजोइक एसिड नहीं देता, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन के लिए अलग टेस्ट याद करना पड़ेगा। इसीलिए टेस्ट तो बहुत सारे हैं बेटा। इफ यू रेफर टू द NCERT और एनी रिफ्रेशर, n नंबर ऑफ टेस्ट आर देयर। पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, गलत लिखते हैं। उसका सोल्यूशन एक ही है कि इस क्वेश्चन को इस तरह पढ़ें जैसे मैंने बताया है। तो आपको 7 क्वेश्चंस एंड ओनली 3 टेस्ट। फिर से समराइज कर लेते हैं। अगर एक एल्डिहाइड एक कीटोन दिया है तो सिर्फ टॉलेंस टेस्ट लिखिए। एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। फेलिंग क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि फेलिंग में कंडीशन थी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। तो अगर आप फेलिंग लिखोगे तो इसके लिए आपको टॉलेंस लिखना पड़ेगा।
इसके लिए आप फेलिंग लिख सकते हो, पर इसके लिए नहीं लिख सकते क्योंकि बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, फिर आप फंस जाओगे। दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट याद करो, इसलिए सिर्फ टॉलेंस याद करो, दोनों पे एप्लीकेबल है। फिर 2 एल्डिहाइड 2 कीटोन दिए, हमेशा याद रखो सिर्फ आइडोफॉर्म लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ आइडोफॉर्म। जिसके पास CH3 होगा वो वाला एल्डिहाइड कीटोन दे देगा, और दूसरा वाला जिसपे CH3 नहीं है वो नहीं देगा, सिंपल सी बात है। और अगर आपको बेंजोइक एसिड आ रहा है तो आप याद कर ले NaHCO3 टेस्ट लिखें, फिनॉल के रिस्पेक्ट में टेस्ट याद ना करें, वरना आपको फिर यहाँ अलग टेस्ट याद करना पड़ेगा कि न्यूट्रल FeCl3 के साथ फिनॉल वायलेट देता है, बेंजोइक एसिड नहीं देता, फिर यहाँ पे ये टेस्ट याद करेंगे आप, तो 2 अलग अलग। तो इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। When only one thing is sufficient for all the 2, and by spending 30 minutes if you are able to learn 7 questions for the entire year, I hope you are somewhere at profit. So you write at once and remember forever for the entire year, and I can bet from this part of the portion which we discussed today, 1 question will surely be asked in the board exam, 1 or 2 maybe. Sometimes more than that also comes indirectly, but in competitive exams also this will be very much useful. So write it somewhere in the copy and